So we were talking about what the properties of the materials. Okay, so हमने दो properties के बारे में basically बेटा जाना था. So what about the first one was the appearance. Okay, these are what? These are the properties of the material. Okay, properties of materials. Okay, so we have talked about the first one is the appearance. Okay, and the next one is the hardness. So the third one we were talking about, हम बात कर रहे थे solubility. Okay, so this one we are going to start from this. Okay, that is the solubility. So what is the solubility? The ability of any substance, okay, which get easily dissolved or completely dissolved in water, that is known as the solubility. Okay, so ऐसी ability भी किसी भी substance की जिसकी वजह से वो क्या है water में dissolve हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं उसकी what that ability is known as the solubility. Okay, so we talk about the types of substances on the basis of their solubility. Okay, on the basis of their ability of it. The first one is insoluble substance. That is insoluble substance. Okay, insoluble substances. Okay, so what are basically insoluble substances? Which what does not dissolve in water, does not what dissolve in water. जो कि water में क्या होता है बेटा, dissolve नहीं होते. ठीक है, for example के लिए soil. Okay, that one is the what, chalk, that does not dissolve. These are the some examples of the substances that does not dissolve in the water. Okay, next thing is what, soluble substances. That is soluble substances. Okay, soluble substances. So these are the substances which get easily dissolved in water. Easily what, dissolve in water, जो कि बहुत आसानी से क्या होते हैं, water में dissolve हो जाते हैं. Okay, for example sugar, salt, okay, lemon juice. और एग्जाम्पल के तौर पर आप दो ही चीज ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू टेक what, that is glass of water. Okay, so if it dissolve a teaspoon of what, sugar or salt, तो आप जब डिजोल्व करेंगे और उसको समय के लिए उसको क्या करेंगे, स्टिर करेंगे स्पून से. ठीक है, उसे मिलाएंगे प्रॉपर, तो कुछ समय बाद आपको क्या मिलेगा कि वो आपको शुगर दिखेगा ही नहीं, या सॉल्ट जो आपने डिजोल्व किया है वो आपको दिखेगा ही नहीं. इट क्या होगा, वो कंप्लीटली क्या होगा, वाटर में डिजोल्व हो चुका होगा. लेकिन अगर आप सॉइल और चॉक अगर उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, इन दैट थिंग, तो व्हाट हैपन, इट डज नॉट डिजोल्व. उसके पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो सॉइल क्या होगा, इट आफ्टर सम टाइम स्टिर करने के बाद क्या होगा, लगेगा आपको कि वो मिक्स है, मतलब डिजोल्व हो रहा है, बट इट डज नॉट हैपन. बट वो होता नहीं है ऐसा. ठीक है, तो कुछ समय बाद उसको ऐसे ही रिलीज करने के बाद क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, दे सेटल एट द बॉटम. वो क्या होता है, बॉटम पर सेटल हो जाते हैं, एंड दैट इज द सेडिमेंटेशन. ओके, सो वी कॉल इट एज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस. हम उसे क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. ओके, so next thing is what, soluble substances. So these are the substances basically हम उनको यूज करते हैं जो क्या है, जो या तो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, या फिर पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, we call it उन substances को जो कि क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है, या फिर वो क्या होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं. ओके, so the substances which are found in the what, solid or the in the form of powder. Okay, so that we what basically consider as what, insoluble substance. Okay, and the soluble substances. Okay, next thing for about the liquids. अब ये तो हमने बात की कि जो solids जो होते हैं, जो dissolve होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे liquids भी तो होते होंगे.
जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में कि नहीं होते हैं बेसिकली? ओके, द फर्स्ट थिंग इज miscible and immiscible liquids. Okay, yes, okay. So अब हम liquids की बात करते हैं. What are basically either it is dissolved in the water or not. ठीक है. So what about the term basically used, that is miscible liquids. Okay, and what about immiscible liquids? Immiscible liquids. Okay, okay. So what are the miscible liquids? The liquids which get it easily mix with the water. What? That mix with water. ऐसे liquids जो water के साथ क्या होते हैं, आसानी से mix हो जाते हैं या dissolve हो जाते हैं. So we call it as miscible liquids. हम उन्हें क्या कहते हैं? Miscible liquids कहते हैं. ठीक है. और immiscible liquids क्या होते हैं बेटा? जो क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते. दैट डज नॉट मिक्स विद द वाटर, डज नॉट मिक्स विद व्हाट, विद वाटर. ओके, सो दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर. दे व्हाट, फॉर्म अ सेपरेट, वो क्या बनाते हैं, एक सेपरेट लेयर बनाते हैं. ओके, ऐसे लिक्विड्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक सेपरेट लेयर जो होती है वो फॉर्म करते हैं. तो मिसिबल लिक्विड्स का एक एग्जांपल लें हम, दैट इज द लेमन जूस. ओके, दैट इज लेमन जूस. ओके, which get easily dissolved in water and the vinegar easily dissolved in water. Okay, if we talk about the immiscible liquids, like what, that is cooking oil. Okay, cooking oil हो गया आपका. Okay, kerosene, what, coconut oil, coconut oil. Okay, these are the what, some examples of what, some examples of the immiscible liquids. जो कि क्या है, कुछ examples है किसके बेटा, that is immiscible liquids के. Okay, examples of the immiscible liquids. Miscible liquids means that the liquids which easily get mixed with the what, water. Okay, for example like lemon juice, you form the lemonade. आप लेमोनेड, नींबू का जो जूस होता है वो आप फॉर्म करते हैं, लेमोनेड नींबू पानी आप बनाते हैं. ठीक है. तो इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, दैट डज नॉट मिक्स विद द वाटर. ओके, जो कि क्या होते हैं, वाटर के साथ जनरली okay, so that generally mix with the what, water. Okay, so does not mix with water. So for example they form the separately. जैसे example के तौर पर अगर हम बात करें बेटा, if you take a glass of water, okay, and what happen, you take a half glass of water, and when we pour what, when we pour some vegetable oil, the cooking oil on it, okay, and stir it, so it forms a what, it forms a separate layer on the top of it. तो वो क्या होती है, एक सेपरेट लेयर जो होती है वो क्या करती है, फॉर्म करती है क्या, दैट कुकिंग ऑयल. क्योंकि वो इमिसिबल है, वो क्या है, उसके साथ मिक्स नहीं होता. बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज लाइटर इन वेट. वो क्या है, वाटर से लाइट है, मतलब लाइटर इन वेट, वेट में वो क्या है, हल्का है. इस वजह से क्या होता है, इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर. ओके, कि डेंसिटी जो है वो वाटर से क्या है, कम है. सो इस वजह से ऐसा है. नेक्स्ट थिंग क्या आता है बेटा, कि अब हमने बात की कि कुछ सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात की, कि जो कुछ वाटर में क्या होते हैं, कुछ मिक्स होते हैं और कुछ मिसिबल होते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं. ठीक है, ये तो बात रही हमारे पास सॉलिड्स और लिक्विड्स की. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द सम गैसेस आल्सो. ओके, इफ यू टॉक अबाउट सम गैसेस, ओके, तो सम गैसेस जो होती हैं बेसिकली बेटा, वो भी क्या होती हैं, वाटर में डिसॉल्व होती हैं. Okay, in what, small amount, in small amount, like what, like oxygen. Okay, that is oxygen. Okay,
So oxygen is what? Dissolved in water. It is what? Dissolved in what? Water. ओके, सो वाटर में क्या होती है? वो डिसॉल्व होती है. और इसीलिए क्या है, इसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, दे आर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, एंड एनिमल्स दे इजीली सर्वाइव इन दैट वाटर. ओके, तो वो क्या होते हैं? आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं. क्यों? जस्ट दैट बिकॉज ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन. तो किसकी वजह से? उस डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, सो इजीली क्या होता है? क्योंकि वही ऑक्सीजन क्या करते हैं? वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दैट रेस्पिरेशन, और इसी से जो एनर्जी फॉर्म होती है वो अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. अगर ये ऑक्सीजन का लेवल वाटर में कम हो जाता है तो उसकी वजह से किस पर इफेक्ट पड़ता है? ऑन फैक्ट ऑन द एक्वेटिक प्लांट्स एंड द एनिमल्स. तो उनके सर्वाइवल में भी क्या होती है? बहुत परेशानियां या डिफिकल्टीज जो होती हैं वो आने स्टार्ट हो जाती है इफ दैट ऑक्सीजन लेवल बिकम लो. ओके, तो ये हमने बात की कि कैसे सॉलिड्स, लिक्विड्स और द गैसेस जो होते हैं बेसिकली दे कैन इजीली डिसॉल्व इन द वाटर. ओके, तो अगर बेटा वाटर की बात की जाए, इट इज अ व्हाट? एक ऐसा सॉल्वेंट है, ओके, दैट act as a solvent in which the various kinds of substances can be easily dissolved. Okay, the first one is, अगर हम एक बात कहते हैं कि आप एग्जांपल ले लीजिए, if we take a container, okay, a glass or the tumbler we have, okay, a glass of water, okay, so if we dissolve some what? sugar अगर हम इसमें dissolve करते हैं, okay, शुगर अगर हम इसमें डिसॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसे स्पून से क्या करेंगे? दैट स्पून से क्या करेंगे? उसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे. ठीक है, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा? आपके पास क्या फॉर्म होगा? दैट इज सॉल्यूशन फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा? सॉल्यूशन. आपके पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा. ओके, तो आपने उसमें क्या ऐड किया? वाटर था आपके पास और आपने क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया. तो उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ आपके पास? सॉल्यूशन फॉर्म हुआ. ठीक है, तो अभी व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या होता है सॉल्यूशन? क्या होता है? ओके, लाइक यू मिक्स द व्हाट? सॉइल इन वाटर, इट फॉर्म्स अ व्हाट? दैट इज अ मिक्सचर. सॉल्यूशन होता है लेकिन वो काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर होता है वो. लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इट इज अ व्हाट? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. सॉरी, इट इज होमोजेनस मिक्सचर, मतलब समांगी मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ही तरह के पार्टिकल्स जो होते हैं एक अनुपात में होते हैं, समान अनुपात में होते हैं. ठीक है, दैट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ओके, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ओके, ऑफ व्हाट? दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. किसका मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर होता है सॉल्यूट एंड व्हाट? सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट का. ओके, सो व्हाट इज द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट? ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? तो व्हाट इज इट? इसमें शुगर क्या है? दैट इज अ सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट है. ओके, एंड इसमें वाटर जो प्रेजेंट है इट इज व्हाट? दैट इज सॉल्वेंट. इट इज सॉल्वेंट. वो क्या है? सॉल्वेंट है. क्लियर? सो व्हाट हैपन? सॉल्यूट द सब्सटेंसेस व्हिच इज यूज्ड टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है किसमें? इन अ लिक्विड में, दैट इज इन सॉल्वेंट में. ओके, एंड व्हाट अबाउट द सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट ऐसा लिक्विड होता है जिसमें किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाए. ठीक है, यानी कि वाटर में जब शुगर को डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर व्हाट इज इट? इट इज सॉल्वेंट. एनीथिंग दैट कैन व्हाट? जिसमें किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, दैट इज व्हाट? सॉल्वेंट. वो क्या है? दैट इज सॉल्वेंट है. ओके, सो अगर हम बात करें सॉल्यूट जो होता है इसका सॉल्यूशन में जो मतलब सॉल्यूशन के कंपोनेंट है दोनों तरह से कहा जाए तो, ठीक है, तो अगर कंपोनेंट है तो इट मींस क्या है? इट इज फॉर्म इन द स्मॉल कंपोनेंट. ये सॉल्यूशन क्या है? सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है इसको. कंपोनेंट क्या है? स्मॉल कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, एंड इट इज इन द लार्जर कंपोनेंट. फॉर्म करता है दैट इज फॉर्म द लार्जर कंपोनेंट. ओके, we use the water
half glass of water. Okay, that is the larger component of the what solution, that is solvent. Okay, water. Okay, but we use the teaspoonful of a what sugar, okay, which is the form the smaller component of the solution, that is what called as solute. हम उसे क्या कहते हैं, solute कहते हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. ठीक है, सो इस तरह से क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूट, जिस सब्सटेंस को क्या किया जाता है किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज द सॉल्यूट. ओके, व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर कंपोनेंट. एंड व्हाट नेक्स्ट थिंग इज, जब कोई सब्सटेंस, ठीक है, किसी लिक्विड, कोई ऐसा लिक्विड जो अपने में किसी भी सब्सटेंस को अगर मतलब किसी सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व कर ले, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द लार्जर कंपोनेंट. जो होता है वो सॉल्यूशन का क्या फॉर्म करता है, लार्जर कंपोनेंट जो होता है वो क्या करता है, फॉर्म करता है. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, देयर इज एन एक्सरसाइज, सॉरी, एक एक्टिविटी है शायद आपकी बुक में, जस्ट टू फाइंड इट एदर इट इज अ मिसिबल और द इमिसिबल लिक्विड्स. फॉर एग्जांपल की बात की जाए, दैट इज लिक्विड एंड मिक्सेस, mix or not well mix. Okay, the first one is what, that is vinegar. Okay, okay, I write like this. Okay, next thing is what, lemon juice, lemon juice. Okay, coconut oil. Okay, so next is kerosene, and the next one is about, so these are what, some liquids in which we have the mustard oil also, mustard oil. Okay, so these are the some examples. So what are this liquids, vinegar जो होता है basically बेटा, it is a what kind of a liquid, basically it is a miscible liquid. ये क्या है, miscible liquid है. So it get what, mixed with the water, will mix with what, that is with water. So we can write it as it get easily mixed with the water. Okay, next thing is what, lemon juice. Okay, आप लेमोनेड बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी, तो उसमें क्या होता है, लेमन जूस जो होता है इजिली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है. तो दैट इज ऑल्सो अ व्हाट, दैट इज ऑल्सो अ मिसिबल लिक्विड. ओके, सो वी कैन राइट इट एज इट इज गेट मिक्स विद द वाटर, इजिली गेट, ठीक है, मिक्स विद द वाटर. नेक्स्ट इज कोकोनट ऑयल. ओके, kerosene and mustard oil, these form a separate layer on the water. When we dip a small amount of it, okay, in water, basically they form a separate layer. Okay, so that's why they are what, they are immiscible, immiscible liquids. So we call it as what, does not mix, okay, with water. So we call it as does not well mix with the, basically that is with the water. Okay, so this one is some examples of the what, miscible liquids, and some examples of the immiscible liquids, like vinegar and lemon juice are miscible liquids, and these three, coconut oil, kerosene and the mustard oil, these are what, these are immiscible liquids that does not get mixed with the, basically with water. Okay, next thing is about the, basically water के बारे में ही बात करते हैं कि water जो है बेटा उसमें एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को वो अपने में क्या होती है, मिक्स कर लेती है, मतलब इजिली गेट डिसॉल्व इन दैट वाटर. ओके, सो दैट्स व्हाई अगर इजिली जो होते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस की बात की जाए, तो सर्टेन सब्सटेंसेस जो होते हैं, ओके,
they easily get mixed with that water. या उसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को वो आसानी से अपने में घोल लेती है. सो दैट्स व्हाई इट इज अ व्हाट अ गुड सॉल्वेंट. वो क्या है, एक तरह का गुड सॉल्वेंट है. ओके एक तरह का क्या है, गुड सॉल्वेंट है. या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं या कहा जाता है, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच गेट इजिली व्हाट यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बिकॉज बहुत सारे सब्सटेंसेस को वो अपने में क्या कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है. जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हमारा ब्लड है बेटा. ओके सो हमारा ब्लड जो है बेसिकली वो क्या है, इट कंसिस्ट 90% ऑफ द वाटर. उसमें 90% क्या प्रेजेंट है, दैट द वाटर इज प्रेजेंट. जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा बॉडी में उसका डाइजेशन होता है. ठीक है, जब डाइजेशन होता है तो उसको एब्जॉर्ब भी होता है, वो एब्जॉर्प्शन भी होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और फिर जब वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं. तो ब्लड में किसके साथ डिजोल्व होते हैं, दैट थिंग. ओके एंड व्हाट it that blood contains also other kinds of cells. Okay and different pigments जो present होते हैं, and that's why it blood जो होता है, ये blood अपने में dissolve करके उन nutrients को कहाँ पहुंचाता है, towards the different parts of the body, और वहां पर उसको क्या करता है, स्टोर करता है. तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें क्या होती है, आसानी से क्या होती है, डिजोल्व हो जाती है. ओके इसलिए क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, वाटर जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट मैटर करता है. ठीक है, इंपॉर्टेंस जो होती है उसके मैटर करती है. सो व्हाट अबाउट, दैट्स इट. ओके सो वी टॉक्ड अबाउट व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. सो फर्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे दे आर डिवाइडेड एज अ सॉल्युबल सब्सटेंस एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. ओके सो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दैट इजीली गेट डिसॉल्व इन द वाटर, बट फॉर एग्जांपल शुगर एंड सॉल्ट. ओके जिसको आप आसानी से क्या है, खोल सकते हैं. ठीक है, और फिर उसके पार्टिकल्स आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे कि वो कहाँ गए. लेकिन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो इजीली क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते. Okay that does not get easily what mixed with the water or dissolve in a water. Okay so that's why what happen, like if we what dissolve soil in water. Okay अगर हम soil mix करते हैं तो क्या होता है, वो dissolve नहीं होता. We can see the particles of that. आप उसके particles को क्या आसानी से देख सकते हैं. तो that form a mixture, वो mixture बनाता है. ठीक है, तो लिक्विड्स की अगर हम बात की जाए तो लिक्विड्स में हमने जाना कि व्हाट अबाउट द मिसिबल एंड द इमिसिबल व्हाट लिक्विड्स क्या होते हैं, व्हाट आर मिसिबल लिक्विड्स एंड व्हाट आर इमिसिबल लिक्विड्स. बेसिकली जैसे ऐसे लिक्विड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, दे गेट इजीली मिक्स विद द वाटर, दे आर द मिसिबल. ओके एंड सम लिक्विड्स जो होते हैं दे फॉर्म अ सेपरेट लेयर एंड डज नॉट डिसॉल्व इन दैट वाटर. ओके so they are the immiscible liquid like kerosene, diesel, petrol जो होते हैं, so they are lighter than weight. Okay lighter in weight होते हैं than the water, so that's why they form a separate layer on the water, so it does not get mixed well with the water. Okay so next thing हमने जाना about the क्या solution के बारे में, that you form the lemonade अगर बनाते हैं आप तो वो क्या बनाता है, एक solution बनाता है. तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, जिस चीज को आप घोलेंगे वो क्या होगी, दैट इज द सॉल्यूट. ठीक है, जिसमें आप घोलेंगे दैट इज द व्हाट सॉल्वेंट. मतलब वाटर में आपने घोला ना उसको, तो व्हाट इज दैट थिंग, वो सॉल्वेंट है. और इस तरह से आपके पास क्या फॉर्म होता है, दैट इज द सॉल्यूशन. आपके पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्यूशन फॉर्म होता है. ठीक है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मतलब प्रॉपर्टीज पे बेस पे. ठीक है, तो वाटर की एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से क्या होती है, उसमें बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, लाइक गैसेस भी जो होती हैं वो भी क्या होती है, डिसॉल्व होती हैं उसमें. लाइक ऑक्सीजन जो होती है, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर फॉर विच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द व्हाट, फॉर द aquatic animals and the plants. Okay so they basically they live in the water. Okay so that's it about. If you have any doubt, you can ask to me. Tomorrow we will discuss about the next property, that is float or sink in water.
Can you hear me? Anuj, सुरेश, आवाज आ रही है? Okay. You have any doubt? No. Yes, Shivangi Singh. I can't. बेटा आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी. I can't hear you. आवाज नहीं आ रही है मेरी. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है बेटा. One minute. Yes. hear you. मैम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का एक बार बता दीजिए. Okay. Solvent. बेटा सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि ऐसा लिक्विड जो जिसमें सॉल्यूट को घोला जा सके, मतलब किसी सब्सटेंस को घोला जा सके, ठीक है, या घोला जाता है, दैट इज द सॉल्वेंट. लाइक वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है जिसमें किसी भी तरह के सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं? घोल सकते हैं, मतलब कि मिक्स कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. ओके, दैट इज द सॉल्वेंट. ओके. यस अमन गुप्ता. So ऐसा substance, okay, या ऐसा liquid that can dissolve another substance, okay, that is a solvent. Okay. So what about solute? The substance that is dissolved in a liquid. मतलब ऐसा substance जो liquid में dissolve हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? solute कहते हैं. और इस तरह से उनका जो एक mixture form होता है, homogeneous mixture, that is known as the solution. शिवांगी, I can't hear you बेटा, मुझे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है. मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. यस श्याम. श्याम. शिवम गुप्ता. What is universal solvent? Water is a universal solvent. Maximum substances can be easily dissolved in a water. That's it. अब आवाज मुझे समझ आई आपकी. Okay. Yes, Shivangi. Sorry, it is Lakshita. Yes, beta. Aman. Yes. Oil is what? Less denser than water, so that's why. Sham, is Shivam Gupta. Yes, ma'am. Yes. What is the solubility? Acham, Shivam Gupta. Yes. Like अगर हम बेटा बात करते हैं, what is the surface? That surface is what? ये कैसा surface है? ये किस तरह का? Solid. It is a hard surface. This is a hard surface. ये material है property की, hardness, that is hardness and the softness that we easily compress. अगर हम इसे easily compress कर सकते हैं, okay, तो that is the soft, ठीक है, और this one is the hard, okay, and the roughness and the what? Smooth surface, what is it? Smooth surface क्या है बेटा? Having the irregularities present on the what? On the surface, that is the rough surface. और जिस surface पे irregularities नहीं हो सकती है, ठीक है, नहीं होती है, that is the smooth surface which can be easily scratched. Okay.
Any doubt? No, ma'am. Shvesh? No, ma'am. Shreya? Aditya Singh? No doubt. So 3 chapters are coming in your exams. Okay, beta. प्रिपेयर हो जाओ, थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो घर पे ही, ठीक है? ओके, वैभव, व्हाट आर द मिसिबल लिक्विड्स? वैभव, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? यस, ओके, प्रियांशु मिश्रा, हाँ कहिए। Yes, ma'am. Ma'am, liquids that mix with water are known as miscible liquids. That mix easily with water. Yes, say. मैम हाँ कहिए। यूनिवर्सल वाला बता दीजिए। Water is beta universal solvent because many different variety of substances easily get dissolved in that water. So उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस को वो क्या कर सकता है, आसानी से लिक्विड्स, उस लिक्विड में आसानी से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो एक गुड सॉल्वेंट है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। श्रेया, बेटा आई कांट हियर यू। मैम क्रिएट सब्सटेंस। व्हाट इज इट? मैम क्रिएट सब्सटेंस।